Now today we are going to start with chapter number 11 on customs. In this chapter we will study about our language. हम dresses पढ़ेंगे, dance और आपके music, festival, fairs, games जो होते हैं, ठीक है, painting, agriculture, ठीक है, और sculptures जो होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे. India has a long and very rich history of culture. Culture means development of all powers of men. This culture has not developed in few years. It has taken a very long time to grow to present form. We have learned it gradually from our forefathers. In other words, our culture is a heritage which we have received by birth and by training from parents and society. ठीक है, जो हमें किससे मिला है? हमारे पेरेंट्स से, हमारी सोसाइटी से. ठीक है. Heritage is a traditional but useful thing and cause that makes our life more safe, comfortable and enjoyable. Those things are language, costume, dance, music, festivals and games, painting, architecture and clubs. ठीक है, ये क्या है? ये different customs हैं जो हम follow कर. Now our languages, different languages are spoken in different parts of India. Indian constitutions recognize 22 major languages. They are Hindi, Assami, Bengali, Gujarati, Kannada, Kashmiri, Konkani, Malayalam, Manipuri, Marathi, Nepali, Odia, Punjab, Sanskrit, Sindhi, Tamil, Telugu, Urdu, Math और जो बोधो, ठीक है, और सैंथी. A number of people who speak English. हिंदी क्या है? हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है. And these language have their own script. They are generally written from left to right. Kashmiri, Sindhi, Urdu are written from right to left. And the language changes its dialects at every 40 kilometers. हर एक 40 किलोमीटर पे अपने डायलेक्ट को चेंज कर. Our dresses and costumes. People dresses in different ways in different parts in India. Women wear sari, blouse, salwar, kameez, skirt. Ghagra, a thick petticoat skirt having many folds, is more common in Haryana, Rajasthan, Madhya Pradesh and Gujarat. Dupatta or chunri is common in northwest. In the northeastern hills, women like to wear longs. ठीक है, long skirt पहनती है, उस पे कलरफुल स्ट्रिप्स होती है. और cities में young women and girls like to wear salwar kurta. And these dresses have beautiful prints and embroidery on. देखो आप देख रहे हैं, अलग अलग मैन ने अलग अलग तरीके के ड्रेसेस पहने हैं. ऐसी वुमेन का दिखा. मैन क्या पहनते हैं? कुर्ता पजामा, धोती, लुंगी, कुर्ता, ठीक है, और कोट पैंट और शर्ट वगैरह पहनते हैं. मेंस वियर पजामा, कुर्ता, धोती, लुंगी, कुर्ता, सलवार कमीज. दे पुट ऑन द टर्बन और कैप ऑफ डिफरेंट शेप, साइज एंड कलर. Nowadays, शर्ट, टी शर्ट एंड ट्राउजर पेंट्स आर बीइंग वेरी कॉमन. आज के टाइम में टी शर्ट हो गई, ट्राउजर्स हो गई, ये तो बहुत ज़्यादा कॉमन है. बॉयज जीन्स पहनते हैं, टी शर्ट्स पहनते. Our dances and music. We have long tradition of dance and music. Dance and music both are of two kind. ठीक है, एक तो होता है आपका folk and classic. Folk music और folk dance. Usually go together. They perform by a group of people. They do not require much training and practice. इसमें ज़्यादा ट्रेनिंग और प्रैक्टिस नहीं चाहिए होती है. लोग गाना गाते हैं और डांस करते हैं ऑन हैप्पी ओकेजन, जैसे कि बर्थ ऑफ चाइल्ड, मैरिज, गुड हार्वेस्ट या बिगनिंग ऑफ न्यू वर्क और न्यू सीजन. ठीक है, बहुत सारे हैं, जैसे भांगड़ा और गिद्दा आपके पंजाब का, नाटी हिमाचल प्रदेश का, घूमर राजस्थान का, रास और गरबा गुजरात का, बिहू का असम और एंड ट्राइबल डांस ऑफ ईस्टर्न स्टेट और कुछ ट्राइबल डांस आपके स्टेट स्टेट्स. क्लासिकल डांस की बात करते हैं, इनको ज़्यादा ट्रेनिंग और प्रैक्टिस चाहिए होती है. ये टिपिकल ड्रेसअप होते हैं, जैसे भरतनाट्यम, ठीक है, उड़ीसी डांस, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, कथक. ये क्या है? कुछ मोस्ट वेल नोन क्लासिकल डांस है. दे आर बेस्ड ऑन डिफरेंट बीट्स एंड रिदम. किस पे बेस्ड है? बीट्स पे और रिदम्स. दे आर लर्न बाय अ ट्रेन एंड एक्सपीरियंस टीचर फॉर अ लॉन्ग टाइम. इनको ट्रेन किया जाता है और लर्न करा जाता है फ्रॉम अ एक्सपीरियंस टीचर. सम डांसेज आर डांस ड्रामा. द कथकली ऑफ केरला, यक्षगान ऑफ कर्नाटका, द डांस ड्रामा. ये हमें स्टोरीज बताते हैं थ्रू डांस. ठीक है, देयर आर टू मेन स्टाइल ऑफ क्लासिकल म्यूजिक. हिंदुस्तानी जो कि कहाँ डेवलप है? नॉर्थ में, और कर्नाटका आपका साउथ. बोथ दीज स्टाइल्स आर बेस्ड ऑन रागा. देयर आर डिफरेंट रागास ऑफ डिफरेंट टाइम्स, ओकेजन एंड इवन सीजन. Instrumental music has also been very popular. The popular musical instruments have been few: Senai, Veena, Sarod, Sitar, Bhola, Tamla, and Mridajal. Harmonium has come with the European and become very popular in India. Some well-known musicians are Pandit Ravi Shankar, Hari Prasad Chaurasia, Shiv Kumar Sharma, Ustad Ajmal Ali Khan, Ustad Bismillah Khan, और जाकिर
हुसैन, ये सारे चाहे कुछ फेमस आपके सिंगर्स। आर फेस्टिवल्स, फेयर्स एंड गिफ्ट। देखो फेस्टिवल, हम फेस्टिवल बनाते हैं, ठीक है, न्यू क्लोथ्स पहनते हैं, नई नई चीज़ें बनाते हैं, ड्रेसेस बनाते हैं और अपने फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं। Festival bring change and cheer in our life. We wear new clothes, decorate our house, we meet each other, eat special dishes. They are processing and fair. फेस्टिवल जो होते हैं वो आपके 4 तरीके के होते हैं: नेशनल, सीजनल, हार्वेस्ट और रिलीजियस फेस्टिवल। नेशनल फेस्टिवल में आपका इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती आ जाती है, ठीक है। सीजनल जो सीजन के हिसाब से होते हैं, ठीक है। और आपका हार्वेस्ट होली, ठीक है, आपकी होली हो गई, ठीक है, पोंगल हो गया, ओणम हो गया। और रिलीजियस फेस्टिवल में आपके दिवाली, बैसाखी, गुरु पर्व, ये सब आते हैं। वी हैव 3 नेशनल फेस्टिवल, जैसे रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती। दे आर सेलिब्रेटेड विद ग्रेट जॉय इन द मेमोरी ऑफ इम्पॉर्टेंट नेशनल इवेंट्स। अ ग्रैंड परेड इज हेल्ड ऑन रिपब्लिक डे इन दिल्ली, जो हमारी क्या है, नेशनल कैपिटल। फेस्टिवल कनेक्टेड विद द चेंज ऑफ सीजन आर बसंत पंचमी एंड होली। इन नॉर्थन इंडिया होली एंड बैसाखी जो है वो हार्वेस्ट फेस्टिवल है। सिमिलरली पोंगल तमिलनाडु में और ओणम केरला में ये क्या है, हार्वेस्ट फेस्टिवल। नाउ आई विल टेल यू सम रिलीजियस फेस्टिवल, जैसे आपकी रामनवमी, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली। और जो क्रिसमस है, ईद उल फितर, ईद उल जुमा, गुरु पर्व, बुद्ध पूर्णिमा और महावीर जयंती, ये सारे क्या है आपके रिलीजियस फेस्टिवल। Fairs are organized by people in connection with some religious or social events. ठीक है, पीपल एंजॉय swings, राइड्स, डांसेस, जिमनास्टिक्स, ईटेबल एंड ड्रिंक्स। और जो गेम्स हैं वो 2 तरीके के होते हैं, इंडोर एंड आउटडोर। इंडोर जो हम घर में खेलते हैं, आउटडोर जो हम घर के बाहर खेलते हैं। द गेम ऑफ चेस वॉज इन्वेंटेड इन इंडिया, इट वॉज देन कॉल्ड चतुरंगा। अदर इंडोर गेम्स जैसे कि आपका काउरी, शेल्स, गोटीज, बीट, फॉर एग्जाम्पल चौपार इज सच गेम। आउटडोर गेम्स में आपका गिल्ली डंडा, फ्लाइंग काइट, पतंगबाजी, गेम्स विद मार्बल, जिसे हम बोली कहते हैं, कुश्ती। इवन 2 पर्सन कैन कम्पीट इन दिस गेम। पॉपुलर टीम गेम्स की अगर हम बात करें तो कबड्डी और खो खो। नाउ पेंटिंग्स अर्ली मैन ने क्या करा था, दे यूज टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑन केव वॉल्स। केव वॉल्स पे पिक्चर्स बनाते थे, ठीक है। विद द टाइम आर्ट इम्प्रूव। इन अजंता केव वी सी द बेस्ट पेंटिंग, दे आर नियरली 1500 year old. We know about the dress, hairstyle and makeup of women, men from this painting. They express the feeling of person very effectively. King emperors encourage art in their, और जो kings होते हैं, emperors होते हैं, वो encourage करते हैं art को अपने में। Next is architecture and sculpture. Indian architecture was well developed, advanced even 5000 year old. जो rules है आपके इंडस वैली के, तो इसको प्रूव करते हैं। और जो स्तूप ऑफ सांची है, सारनाथ, क्या है, आर द ब्यूटीफुल स्पेसिमेन ऑफ आर्किटेक्चर। कैलाश टेम्पल जो इलोरा का है वो ग्रेटेस्ट वंडर है, ठीक है। एंड द होल टेम्पल हैज बीन कार्व्ड आउट फ्रॉम अ सिंगल रॉक। देयर आर मेनी अदर एंशिएंट टेम्पल। मोस्ट फेमस ऑफ देम टेम्पल्स आर कोणार्क, खजुराहो, दिल्ली, तंजौर, मदुराई एंड जैन टेम्पल, ठीक है। स्कल्पचर हैज मेड वेरी फाइन कार्विंग इन देम। और स्कल्पचर पे बहुत ही सुंदर सुंदर फाइन कार्विंग बनाई गई है। आप देखते हैं कैलाश टेम्पल जो इलोरा का है, और दिलवारा का जैन टेम्पल जो कहाँ है, माउंट आबू। Turk and Mughal period added new style of domes and minarets to our architecture. Qutub Minar is famous for its minaret and Gol Gumbaz of Bijapur for its dome. Taj Mahal is a mixture of both minarets and domes. The Europeans also brought with them their architecture. The churches है आपका गोवा वहाँ, Victoria Memorial at present राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली are the specimen of European art. अगर आप इंडियन इंडिपेंडेंस आर्किटेक्चर की बात करें, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ है। जैसे आप देखते हैं बाही का लोटस टेम्पल और अक्षरधाम टेम्पल, ये लेटेस्ट फेमस बिल्डिंग है। आप देख रहे हैं कुतुब मीनार, जीसस बेसिलिका गोया, और बहाई का लोटस टेम्पल जो लोटस की शेप में है वो कहाँ लोकेटेड है, दिल्ली। Religion. India is a secular country where different religion communicates, live together. Every Indian citizen has a right to freedom of religion. हर एक इंडियन सिटीजन के पास राइट है कि वो अपना फ्रीडम ऑफ रिलीजन रख सके। The Indian society consists of Hindu, Muslim, Christian, Jain, Buddhist, Sikhs and Parsi. Each religion has its own belief and thoughts as well as its own places of worship. देखो हिंदू टेम्पल में जाते हैं, क्रिश्चियंस चर्च में जाते हैं, मुस्लिम्स मॉस्क में जाते हैं, सिख गुरुद्वारा में जाते हैं, ठीक है। They have a great influence on the lives of people, but all the religion teach certain common principles and morals. These had different communities to live together in harmony. Different places है, जैसे हिंदू हो गया, मुस्लिम, सिख,
क्रिश्चियंस, पारसी और जैन। ये कहाँ जाते हैं? इनके अलग अलग रिलीजियस केस है। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।